ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया, एंड देन वी विल मूव टू लैंथेनॉइड्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास दो होते हैं, देयर इज वन दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड एंड द अदर दैट इज नोन एज एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड है कहीं पे, देयर इज एक्टिनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड इज फ्रॉम all the elements, the 14 elements that are after lanthanum. Actinides का मतलब एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स, ओके। और लैंथेनम में आपके पास 4f सबशेल भरता है, एक्टिनाइड में आपके पास 5f सबशेल गेट्स फिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक एट लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड में सबसे पहले, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू विल हैव व्हाट वी आर गोइंग टू फिल 6s2s कॉमन बट विथ वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल, ठीक है। 4f में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोले तो इट इज गोइंग टू बी 4f 1 to 14, ठीक है। 4f 1 to 14 इज गोइंग टू बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिएगा, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज 3+, ठीक है। लैंथेनम में 3+ इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। T+ में, okay. Atomic sizes and ionic sizes, as we have discussed in the last lecture also, there is something known as lanthanide contraction, and due to this lanthanide contraction there is unexpected decrease, ठीक है। तो overall decrease in the atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium. The lanthanide contraction is a unique feature in the chemistry of lanthanide, ठीक है। तो इसके consequence में आपके पास एक तो सबसे पहले क्या होता है, unexpected decrease in an atomic and ionic radii, and also has a consequence on (5d) सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। 5d में भी इसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है। There is another point that is important, ये वाला point, the decrease in atomic radii derived from the structures of metal is not quite regular as it is regular in M3+ ions, ठीक है। This contraction is of course similar that is observed in the ordinary transition series and is attributed to the same cause, imperfect shielding of one electron by another in the same subshell, ठीक है। This is the reason of lanthanide contraction. Now next, this is another, some more explanation. Lanthanide contraction, the cumulative effect of contraction of lanthanide series known as lanthanide contraction causes the radii of, क्या क्या इसके consequence हो रहे, causes the radii of members of the third series to be very similar to those of corresponding members of the second series. The almost identical radii of zirconium and hafnium, consequence of lanthanide contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in separation. तो ये वाला जो point है ना, this is important for consequence of lanthanide contraction. Consequence of lanthanide contraction. Now moving towards the oxidation state. सबसे पहले देखिए, in lanthanides lanthanum 2 and lanthanum 3 compounds are predominant. सबसे ज्यादा dominant आपको क्या मिलेंगे, lanthanum 2 positives and lanthanum 3 positive, ठीक है। 2 positive और 3 positive सबसे ज्यादा है। However, sometimes you will see occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained, ठीक है। तो ये दोनों आपको मिक्स तरह के मिलेंगे, they will be mixed, +2 and +4. अगेन वो पूछेंगे कि ये इरेगुलरिटी क्यों आती है, इरेगुलरिटी आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ empty half filled and fully filled f subshell. Thus the ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, सीरियम का they will ask why is cerium +4 more stable.
This is favored because it has noble gas configuration. ठीक है, it has noble gas configuration. ये ध्यान रखिएगा. Ci+4 is stable due to noble gas configuration. Then there is another which is about Eu2+ and Yb2+. ये भी कहीं पे होगा. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप. Eu2+ and Yb2+. Both of them which have what? F14 configuration. I think configuration भी यहाँ पे सबका दिया होगा, है ना? Eu2+, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए. Eu2+ will have 4F7, Yb2+ will have 4F14. ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होता है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज फुली फिल्ड, दैट इज व्हाई दीज आर मोर स्टेबल. राइट दिस डाउन. उसके बाद एक सवाल करेंगे. Cerium+4, then you have europium, Yb होता है ytterbium. This is europium, this is ytterbium. Ce is cerium. All of you done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now please write. Ce+4 is a reducing agent. ठीक है, as readily converts to Ce+3. Wait a second, ये +3 में कन्वर्ट. Wait a second, this will be oxidizing agent. खुद ये क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, oxidizing agent. My bad. Ce+4 is oxidizing agent as it readily converts to Ce+3. Both of these, Eu2+ and Yb2+, these are oxidizing agent. Oops, sorry, इसको हमने फिर से उल्टा लिख दिया. These are reducing agent. Ce is oxidizing agent. These two are reducing agent as they readily convert to Eu3+ and Yb3+. इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, that 3+ is the most common oxidation state. +4 से भी लोग +3 में चले जा रहे हैं, +2 से भी लोग +3 में चले जा रहे हैं. ठीक है, तो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, इट इज +3. तो आपको एक आपसे सवाल ये किया जा सकता है, there is one more element जिसका +4 is stable. I think that is Tb, terbium. Tb+4 ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ठीक है, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ दे आस्क यू. तो इसको ध्यान रखिएगा, दिस विल ऑलवेज कन्वर्ट टू व्हाट, इजीली कन्वर्ट्स टू Tb+3. ऑल द lanthanides they will easily convert to +3 state. ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग reduced. ये this is a good oxidizing agent. It is getting reduced, that means it is a good oxidizing agent. तो जो भी आपको दिया जाए, it is a good
क्या अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको उसको क्या कीजिएगा, +3 में कन्वर्ट कीजिएगा। +3 में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, वेदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी यहाँ पे आपको +2 वाले मिलेंगे ना, ऑल ऑफ द +2 विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो +4 होगा लैंथेनम में, लैंथेनाइड वाले सीरीज में, ऑल ऑफ देम विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ध्यान से रखिएगा। डन, ये सर प्लीज टेल मी, ये लिख लिया आप लोगों ने +2 एंड +4 का? All of you wrote this point. +2 will be reducing agent, +4 will be oxidizing agent. नहीं लिखा, जल्दी लिखिए। Yes, sir. Okay. Now moving on next. General characteristic. First of all of them are silvery white and soft metals. ठीक है, they are silvery white and soft metals. They tarnish rapidly with air. They tarnish rapidly with air. Then many trivalent lanthanide ions are colored both in solid state and in aqueous. ठीक है, trivalent lanthanide colored होते हैं. Why they are colored? These colored may and color of these ions may be attributed to the presence of f electrons. ठीक है, presence of f electron. Neither La3 plus nor Lu3 plus shows any color because La3 plus में आपके पास कोई कलर नहीं होता है। Why? 4f0 है यहाँ पे। Lu में नहीं होता because it is 4f14, it is completely filled. ठीक है, इन दोनों में आपके पास कलर नहीं होता है। Then you have the lanthanide ions other than F0 type and F14 type are all paramagnetic. ठीक है, बाकी जितने हैं आपके पास लैंथेनम F0, लैंथेनम 3+, सीरियम 4+, और F14 वाले जितने होते हैं Yb2+, Lu3+, these are diamagnetic. बाकी सारे के क्या हो जाते हैं? All of them are what? All of them are paramagnetic. Then you have in general chemical behavior, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number they behave more like aluminium. ठीक है, तो आपके पास बिहेवियर कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? कैल्शियम से लेके एल्यूमिनियम तक। ठीक है, तो इनिशियल वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं? कैल्शियम, दैट मींस +2 ज्यादा मिलेगा, और आखिरी वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं? एल्यूमिनियम, दैट मींस यू विल गेट मोर ऑफ द +3 एलिमेंट्स। ओके, प्लीज सी हियर, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला। When you have any lanthanoid, it will burn with O2 and ये क्या बनाता है? Ln2O3। ये बताइए, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव किया या फिर कैल्शियम की तरह? ये किस तरह से बिहेव किया? Ln2O3। दिस बिहेवियर इज लाइक कैल्शियम और एल्यूमिनियम। कैसे पता करेंगे? सी, यू हैव Ln2O3 है ना, यानी कि लैंथेनम में क्या होगा? लैंथेनम विल बी +3, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है। बताइए नाउ लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स, दीज आर बिहेविंग एज एल्यूमिनियम या कैल्शियम? +3 ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, देन if you react this with acid then you are going to get H2. तो ये दोनों के साथ, दोनों की तरह ही है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, both are going to give you what? Hydrogen gas when they react with acid, because these are going to be active metals. These are going to be active metals. अब ये देखिए Ln2S3, अभी भी ये किसकी तरह रिएक्ट किया? It is still reacting like aluminium. Ln and N, still it is reacting with, like it is still reacting as aluminium, because दोनों का 3-3 है तो 1-1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, then you have LnC2. When you react it with carbon, you will get carbide. अब ये बताइए किस तरह से रिएक्ट किया है? Then you have LnOH whole thrice, and you have LnX3. ठीक है, so as you can see, most of the reaction, all of these reactions are similar to what? All of these reactions are similar to most of the lanthanums. They are having +3 oxidation state. ये +3 oxidation state में रहना चाहते हैं, and they react like aluminium. Okay, they react with like aluminium. तो आप लोग अगर reactions याद नहीं हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा, they will always react like aluminium, getting +3 oxidation state. तो लैंथेनम और आपको ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो लैंथेनम में +3 कर दीजिए, बिकॉज एल्यूमिनियम की तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी?
ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 लिख सकते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट Ln3O2। सिमिलरली आप कर लीजिए लैंथेनम, लैंथेनॉइड्स एंड नाइट्रोजन, दोनों में क्या होगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Ln3N3, 3 कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव Ln okay, so these are the general properties of lanthanoids. All of you can do these reactions, एक बार खुद से reaction कर लीजिएगा and you will show yourself that it is similar to that of aluminium. Carbides Sir, के बारे में tell me. in Ln, that one cross multiplication, it should be Ln2O3, right? हाँ, sorry, my bad. Yes, correct. I was saying about carbides. Carbides में याद रखिएगा, there are 3 types of carbide. You have Ln3C, then you have Ln2C3, and then you have Ln2C2. ठीक है? All of these carbides are formed when metals are heated with carbon atom. When metals are heated with carbon. Okay. अब बाकी सारे same reactions है. When you react with water, they are going to give you hydroxide as that of aluminum. Now, this is important. The best single use of lanthanides is for the production of alloy steels for plates and pipe. A well-known alloy is mixed metal, which consists of lanthanide metal, that is 95% and iron 5% and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. ठीक है, तो remember this mixed metal. Okay, this is one of the uses of lanthanides. Now, moving on to actinoids. यहाँ पे आप actinoids में देखिए, एक आपके पास ना यहाँ पे you have some exceptions. यहाँ पे you have one of the exception that is of thorium का, है ना? Thorium, potassium, uranium, neptunium, all of them are having 6d1d1. तो यहाँ पे आपके पास देखिए थोरियम है, इसमें D2 होता है, बाकी ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ ना P में, येलो में, all of these are going to have D1 configuration. ठीक है, D1 जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन it is an exception इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. So all of these are going to have some type of D1 configuration, चाहे वो प्रोटैक्टिनियम हो, यूरेनियम हो, नेप्चियम हो, क्यूरियम हो या फिर लॉरेंशियम हो. एक आई थिंक देयर इज वन एग्जांपल इन हियर आल्सो. D2 नहीं, D2 नहीं है, D1 है सारे, है ना? D1 को हमने वैसे भी हाईलाइट करके रख दिया है. दिस इज गोइंग टू बी D1. D2 आई थिंक इट इज इन पैलेडियम या प्लैटिनम में होता है D2 कॉन्फ़िगरेशन. खैर, थोरियम इज गोइंग टू हैव 6d2 कॉन्फ़िगरेशन एंड 7s2. यहाँ पे आपके पास 4f में, सॉरी, हियर यू विल नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स. इन दोनों में देख लीजिए, एक्टिनियम में और थोरियम में, दोनों में क्या होता है, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. 4f बोल रहे, सॉरी, 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. ओके, ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसका? दिस इज गोइंग टू हैव 5f में आपके पास 2 to 14 भरते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, स्टार्ट्स विद व्हाट? इट स्टार्ट्स विद 2 to 14. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ लेकिन अगर इफ यू हैव M3+ कॉन्फ़िगरेशन, 3+ में आपके पास F0 से, इन 3+ कॉन्फ़िगरेशन इट इज गोइंग टू बी 5f 0 to 14 इन 3+ कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम से एक दिन पहले ना, एग्जाम से आप जाने से पहले इन सबको कॉन्फ़िगरेशन देख के चले जाइएगा बस. ठीक है, ज्यादा अगर याद करने वाली चीजें बस एक बार देख के चली जाइए, फिर वहां पे आप लिख के आ जाइएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटीज की वही बात है, F0, F7 और F14, these are going to be what? The related stabilities of these are going to be more stable for F0, F7 and F14. Ionic sizes में अगर देखेंगे, there is a gradual decrease in the size of M3+ atoms or M3+ ion across the series. This may be referred to as actinide contraction, like lanthanide contraction. The contraction is however greater from element to element in the series, resulting in poor shielding of 5f electron. एक्टोनाइट में आपके पास एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस उतने ज्यादा नहीं है जितने लैंथेनाइट के हैं. एंड अगेन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता था? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन.
actinide contraction will be poor shielding of 5f electron. ठीक है, remember this. एक्टिनाइड के बारे में उतना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज जो एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट मैनमेड है, एंड मतलब कोई कोई एलिमेंट तो ऐसा है ना जिसका 0.01 ग्राम भी नहीं है दुनिया में, उससे भी कम बना है, और बस उस टाइम ये चल रहा था, क्या बोले हम, देयर वाज कंपटीशन गोइंग ऑन, है ना, कि कौन ज्यादा एलिमेंट बना पाता है, रशिया और मोस्टली रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जब ये लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम साइंटिफिक इन्वेंशन कौन ज्यादा करता है, तो उसमें लोगों ने एक एक नैनोग्राम बना दिया और बोल दिया कि ये रशिया ने बनाया है, ये यूएसए ने बनाया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा नहीं है। एज यू कैन सी, मतलब अक्सर डेटा देखिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेकेंट। आप यहाँ से देख लीजिए, आइंस्टाइनियम से परमियम, मेल्टिलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, ऑल ऑफ दीज आर हैविंग, कुछ यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोला हुआ इन्होंने, ऑक्सीडेशन स्टेट में कहा है +3 and +4 ions tend to hydrolyze because distribution of oxidation state among the actinide is so uneven and so different for the former and later element. It is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state. ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा अनइवन है कि हम लोग वहां पे कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकते। There's one more point. There is a greater range of oxidation state, which is part attributed to the fact that 4f, 6d, 7s levels are of comparable energies. ठीक है, व्हेन यू गो टू मोर हायर लेवल्स, उसमें आपके पास 5f, 6d एंड 7s, इन सब की एनर्जीज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा रहता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेवल में बहुत एनर्जी डिफरेंस रहता है, सेकंड और थर्ड में उससे कम रहता है, थर्ड और फोर्थ में उससे कम रहता है, फोर्थ और फिफ्थ में उससे कम रहता है, फिफ्थ और सिक्स्थ में और कम रहता है। तो एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल आल्सो स्टार्ट टू डिक्रीज, and that is why you have 5f, 6d, 7s, उसके बाद के जितने भी होते हैं उसमें almost you will have similar energy, but still actinides as lanthanide they also show general +3 oxidation state. ठीक है, ये क्या करेंगे, +3 oxidation state देंगे। Now, maximum oxidation state increases from +4 in thorium to +5, +6, +7 respectively in Pa, uranium and neptunium, but decrease in succeeding elements. Okay, so यहाँ पे आपको oxidation state के बारे में दिया हुआ है। बट अगेन एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता, बिकॉज एक्टिनाइड की केमिस्ट्री उतनी ज्यादा व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट स्टेबल केमिस्ट्री, है ना, वहां पे स्टेबलाइज नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विद lanthanides. First thing is actinides are highly reactive metals, especially when finely divided. Action of boiling water on them give mixtures of oxide and hydride, and combustion with most non-metal takes place at moderate temperature, and combination with most non-metal takes place at moderate temperature. Hydrochloric acid attacks all metals, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layer. Alkalis have no action. ठीक है, so एक बार आप इसको पढ़ के चले जाइए कि क्या मिलता है आपको, you get oxide and hydride, and combination with most of the metal they take at moderate temperature, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ता है। Now moving on, what we have else, wait a second. अब कुछ पॉइंट ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, रिएक्शन विथ बॉइलिंग H2O, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन में क्या देगा ये, इट इज गोइंग टू गिव यू ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। रिएक्शन नहीं पूछेंगे आपसे, प्रोडक्ट बोलेंगे, it will give you ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। ठीक है, देन अटैक ऑफ एसिड्स एंड alkalis, रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन में क्या देंगे ये, एसिड के साथ रिएक्शन में दे विल form layer of oxide. Alkalis के साथ रिएक्शन में नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा आपके पास एविडेंसेस नहीं है, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। Magnetic properties of actinides are more complex than those of lanthanides.
Although variation in magnetic susceptibility of actinides with the number of unpaired covalent electron is roughly parallel to the corresponding results of the latter have higher values. ठीक है, तो लेकिन इसको याद रखिएगा, it is more complex than lanthanides अगर कंपेयर करने के लिए आए. ठीक है, this paragraph is important, जो conclusion यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है. A comparison of actinides and with lanthanides with respect to different characteristics is, as discussed above, reveals that the behavior similar to that of lanthanide is not evident until the second half of the actinide series. However, even the early actinide resemble the lanthanides in showing close similarities with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanide and actinide contractions have extended effects on the sizes and therefore the properties of the elements succeeding them in their respective period. The lanthanide contraction is more important because the chemistry of the elements succeeding the lactonides are much less known at the present time. ठीक है, तो lanthanide का contraction का ज्यादा इफेक्ट हम लोगों को पता है because actinide की chemistry उतनी नहीं पता है. ठीक है, because the chemistry of elements succeeding the actinides are much less known at the present time. There is one point in ionization enthalpy जो हम एक चीज लिखाना चाहते थे. In actinoids, this line. The ionization enthalpies of early actinides are lower than early lanthanides. What is the reason? Reason बहुत ही आसान है. When you go down a period, है ना, अगर आप सॉरी एक ग्रुप में नीचे जाएंगे, पहले आपको कहाँ थे, you will have 5f इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, then you have 4f इलेक्ट्रॉन. ठीक है, so obviously you can write like this. Five f electrons will be more shielded than 4f इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि 5f के अंदर अगर आप देखें तो 5f से पहले आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना. 4f वाले इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई 5f इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शील्डेड. मोर शील्डेड का क्या मतलब हुआ? 5f इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा, दैट इज व्हाई दे आर इजीली रिमूव, देयरफॉर दे विल बी ठीक है. आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इस जब हमने ये लिखा ना 5f इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शील्डेड, इसका क्या मतलब है? 5f के अंदर वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन 5f की खुद की क्षमता जो है ना शील्ड करने की, 5f हैज लेस
शील्डिंग पावर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5f ऑन इट्स ओन इट इज गोइंग टू शील्ड लेस, उसकी शील्डिंग पावर नहीं है, बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी मोर शील्डेड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, यस और नो, टेल मी। 5f हैज लेस शील्डिंग पावर, और दूसरा स्टेटमेंट है 5f इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शील्डेड देन 4f इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार बताइए, फिर से हम नहीं तो समझाने की कोशिश करेंगे। दीज टू स्टेटमेंट्स, दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, हम ये समझाना चाहते हैं। टेल मी गाइस, फातिमा, रजान, सारा, अहमद, सामिया। Sir, can you explain? हाँ ठीक है, हम यहां से ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। 2, 3, 4 and 5, ठीक है। This electron is more shielded, ठीक है। तो हम, एक रेड है और आपके पास ग्रीन है, इज मोर शील्डेड देन ग्रीन। सही है ना, बिकॉज अगर ग्रीन को देखा जाए तो ग्रीन में सिर्फ यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल है, तो सिर्फ ये 3 शील्ड कर रहे हैं, लेकिन इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन को कितने लोग शील्ड कर रहे हैं? 4 लोग शील्ड कर रहे हैं। यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है ना? इज मोर शील्डेड, एंड दिस रेड वन has less shielding power than green as it is further as it is further away from nucleus। अगर मान लीजिए आपके पास 6th लेवल होता, वहां पे ये व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन होता, तो व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा शील्ड करता? ग्रीन वाला ज्यादा शील्ड करता या रेड वाला? बताइए। ग्रीन वाला क्योंकि अंदर है, ये न्यूक्लियर को ज्यादा शील्ड करता रादर देन द रेड वन। यस और नो, टेल मी। ये नहीं आ रहा समझ में? Yes. हाँ, ये नहीं आ रहा समझ में? No, sir. अब देखिए, शील्डिंग पावर की बात करते हैं, है ना। अच्छा, ये बात बताइए आप, शील्डिंग पावर की जब हम बात करें ना, तो ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू शील्ड द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने वाला है। क्या शील्ड करेगा? न्यूक्लियर, क्या शील्ड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। दिस रेड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू नाउ शील्ड अदर इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली दिस ग्रीन इज आल्सो गोइंग टू शील्ड अदर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इन दोनों की कैपेसिटी अगर हम देखें, अब ये बताइए, सबसे ज्यादा ये शील्ड करेगा बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द, इट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। यस और नो, सामिया? Yes, sir. है ना, ये सबसे ज्यादा शील्ड करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। जब शील्ड करेगा तो ये किसको शील्ड कर रहा है? दूसरों को शील्ड कर रहा है। उसके बाद ये शील्ड करेगा, देन दिस विल शील्ड, देन दिस विल शील्ड, एंड देन दिस विल शील्ड। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, दो अलग चीजें, कौन ज्यादा शील्डेड है एंड द अदर थिंग इज द शील्डिंग कैपेसिटी। तो शील्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा तो आपके पास जो एस सबशेल होता है ना, उसकी शील्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा शील्ड एस वाले करते हैं, उसके बाद पी, उसके बाद डी, एंड उसके बाद एफ, ठीक है। और अगर हम बात करें शेल्स में, तो सबसे ज्यादा शील्ड कौन करेगा? फर्स्ट शेल के जितने भी आपके पास 1s हो गया, 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, ठीक है। अगर हम एफ की बात करें तो 4f विल हैव मोर शील्डिंग पावर देन 5f, ठीक है। लेकिन 5f इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शील्डेड देन दी 4f इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया सामिया? ऑल ऑफ यू यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शील्डेड देन 4f इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे विल बी इजीली रिमूव्ड, है ना। और इजीली रिमूव हो सकते हैं, दैट इज व्हाई दे विल बी फॉर्मिंग because the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in actinides, ठीक है। these are less firmly held, okay। so this small thing was about lanthanide and actinides। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, okay। so try to do the questions in this chapter। DNF ब्लॉक में जितने सवाल है NCERT में, ज्यादा सवाल नहीं है आपके पास, okay। you have 38 questions। एक दिन में आपके पास 2-2 मिनट भी अगर लगेगा आपको, तो 1 घंटे के अंदर या फिर 1.5 घंटे के अंदर ये सारा हो जाएगा, okay।
इनको कर लीजिएगा एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम जाने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट आई विल डू, नहीं ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग, ओके, इसको कर लीजिएगा। कि बाकी सारे सवाल आप करने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी वाई टाइप के क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर ध्यान हो तो हमने 3 चीज के बारे में बोला था। अगर डी ब्लॉक के बारे में है तो D0, D5, D10 एंड D3, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। D0 इट इज बिकॉज इट इज एम्प्टी, और ये हम बोल सकते हैं कि फुली फिल्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास एस सबशेल विल बी फुली फिल्ड। D5 में क्या होगा आपके पास, इट इज हाफ फिल्ड। D10 में आपके पास दिस इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, दिस इज ऑल्सो हाफ फिल्ड। D3 में क्या होता है, प्लीज रिमेंबर इट इज T2G3, दैट मीन्स हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड T2G लेवल। T2G एनर्जी लेवल क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, दैट इज व्हाई D3 इज आल्सो स्टेबल। तो D3 वाला केस अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो D0, D5, D10, D3 इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन सारी चीजों में। KMNO4 का याद रखिएगा, क्या होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देन देयर कैन बी सम लाइंस आपको लिखने के लिए आ जाए, किसके बारे में, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ओके। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपके पास ये तो हाईलाइटेड PDF है ही, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। एंड प्लीज कंप्लीट दिस 38 क्वेश्चंस। इसमें कुछ सी में अगर आपको दिक्कत आए तो फिर बताइएगा, ओके। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट सोल्यूशन चैप्टर, वी विल हैव रिवीजन ऑन सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन को रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन को आप लोग रिवाइज करके आइएगा, हम लोग यहाँ पे सवाल करेंगे, वी विल डू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, that's it for today. Thank you guys, thank you very much. How many of you have practicals this week? Fatima, Samia, Sara, Razan. Sir, I have. Me too. कब है आप लोगों का? Me too. Sir, All on of you? Wednesday. Wednesday को है, अच्छा चलिए, all the best for your practicals. Wednesday सारा, for me also. Wednesday आपका भी है, सारा का भी Wednesday होगा फिर तो। रजान आपका कब है? Thursday. आपका Thursday है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। 3 चीज है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, सॉल्ट एनालिसिस होगा, एंड ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, है ना। Yes. और कुछ है क्या? नहीं ना, ठीक है। नहीं आप sir. लोग ऑर्गेनिक, शायद ऑर्गेनिक आप लोगों को आ जाए। ऑर्गेनिक में आप लोग ना, आई थिंक फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस वाला होगा टेस्ट, राइट, Yes. है ना। अच्छा, एक और चीज आप लोग देख लीजिए तो शायद आप लोगों को थोड़ा सुकून मिले। ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मार्क्स, इसको लिख लीजिए आप। आप जो भी आपको वो जो प्रैक्टिकल दिया जाएगा ना करने के लिए, वो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर उसी के अराउंड आपका वाइवा होगा, दैट विल बी ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। प्रैक्टिकल आपकी जो रिकॉर्ड बुक है दैट इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स। एंड अब ये पता नहीं आप लोग से पूछते हैं या नहीं पूछते हैं सवाल अपैरेटस के बारे में। ब्यूरेट में, पिपेट में आप लोग को पता है ना फर्क क्या होता है, व्हाट इज ब्यूरेट, व्हाट इज पिपेट, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, Yes, sir. है ना। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यू हैव 10 मार्क्स आपका, मतलब 20 मार्क्स आप समझ लीजिए, 20 मार्क्स आपको कल मिल, मतलब जो भी जब भी आपका प्रैक्टिकल है तब मिलने वाले हैं, वाइवा में और उसके बाद रिटन टेस्ट में, ठीक है। आई होप आपके स्कूल वाले अच्छे से एक्सटर्नल को मतलब नाश्ता वाश्ता दे देते हैं, है ना। एक्सटर्नल खुश रहना चाहिए, एक्सटर्नल के सामने ना ज्यादा घबराइएगा मत, आसानी से जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल जो हमसे पूछा गया था, मतलब फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन का कोई सवाल था शायद, व्हेन आई वाज गिविंग माय 12th, तो उस टाइम उन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्टिविटी के बारे में पूछा था, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन,
ठीक है, बिकॉज सिंस इट इज देयर इन योर सिलेबस, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इन वाइवा इज कि वाइवा में कुछ सवाल होता है, उसके आगे फिर दूसरा सवाल, उसके आगे फिर दूसरा सवाल, उसके आगे फिर दूसरा सवाल होता है ना। एंड व्हाट एल्स, हाँ दो ही है ना आपके पास, तो या तो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन होगा, या फिर अल्कोहल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है ना, यही टेस्ट है ना Sir, फंक्शनल I ग्रुप में तो। heard जी I क्या, heard व्हाट, from other batches that she was asking us to write the structures on a paper. किसका, मोर सॉल्ट का? No, no, sir. She was giving IUPAC names and we had to write the structure in front of her. आपकी वॉइस चली गई। आईयूपैक, तो आईयूपैक नेम तो आता है ना आप लोगों को? हाँ Yes, sir. है ना, आईयूपैक नेम तो आता है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं वो ना पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, ये भी हम एक बार बता रहे हैं आप लोग से वो पूछेंगे कि क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो अच्छे से बता दीजिए, जो भी पढ़ के आए हैं वही से सवाल वो करेंगे, ठीक है, जनरली यही होता है, वो पूछेंगे आपसे कि क्या पढ़ के आए हैं वो, ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा सीधे सीधे जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगता है जिस भी चैप्टर में, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ और आपको चलिए खैर, अभी तो आप प्रैक्टिकल के लिए ये कीजिए, उसके बाद व्हेन यू विल कम ना, घर आके एक बार सॉल्यूशंस को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशन। हम रिवीजन में ना प्लीज ध्यान रखिएगा, रिवीजन में हम चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं, आई विल बी ब्रिंगिंग अप क्वेश्चंस, क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। दोबारा से सारी वही चीज अगर हम पढ़ाने लग जाए तो वो आपके लिए भी बोरिंग होगा, तो रिवीजन छोड़ दे, मतलब रिवीजन इन द सेंस कि हम थ्योरीज नहीं कराएंगे, लेकिन सवाल लेके आएंगे, एंड दिस विल बी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सॉल्यूशन चैप्टर में खास तौर से क्या